Good morning, students. All of you are fine? Okay, thank you. We are interacting the unit genetics, chapter molecular basis of inheritance. In this chapter we have learned nucleic acid, that is DNA and RNA, double helical structure of DNA, DNA packaging, semi-conservative nature of DNA, DNA as a genetic material. Today, the major point which we are going to interact, that is DNA replication. Already when Watson and Crick in 1953, he has given the double helical structure. Just you see, I have taken one string wire. Just you see, this is double helical here. Double helical structure. Simultaneously, he has predicted that DNA replicate. Replicate means it makes its this one separate होकर के ये this one single strand again synthesize to form another exact copy of DNA. Just you see here, इसकी एक कॉपी फिर से बन गई. Here एक कॉपी इसकी फिर से. तो ये जो पहले वाला था, दिस इज नोन एज पेरेंटल, और ये न्यूली सिंथेसाइज. तो माय लविंग स्टूडेंट्स, you know that DNA replication, it transform a system, it perform a process. In this replication performed by two process. Number one, autocatalysis. Auto, A-U-T-O, catalysis spelling already you know, C-A-T-A-L-Y-S-I-S. Autocatalysis is the process of DNA replication in which DNA produce another DNA. This is known as autocatalysis. Another, that second process of DNA replication, that is hetero, H-E-T-E-R-O, heterocatalysis. Heterocatalysis, it is another process in which DNA produces RNA. This is called transcription. Already in central dogma we have told that DNA to RNA and RNA to protein. That was the central idea, central dogma. But here we are interacting only autocatalysis, DNA to DNA. How does one double helical structure, this is double helical structure, DNA produce another one? It is a very complex process. It needs a different step and several number of enzymes are involved in DNA replication. Replication means to make exact copy of that. Just you see, in the process of first step of DNA replication, that is autocatalysis, ये very complex structure है. It needs multi steps and several enzymes are involved for replication. These are, first of all, I would like to introduce the enzyme. How many enzymes are involved basically in DNA replication? That is number one,
helicase, HELICASE, helicase enzyme, topoisomerase enzyme, single strand stabilizing protein enzyme. Number 4, ligase, LIGASE, ligase enzyme. Number 5th, DNA polymerase 1 enzyme. Number 6, primase enzyme. It is also known as DNA dependent RNA polymerase enzyme. Number 7, very important role it has. We will come back and interact later. DNA polymerase 3, it has 3 subunits: alpha, epsilon and beta 2. जो it composed of 3. We will interact later. What are these 3 subunits of DNA polymerase and what are their function respectively? Number 8, phosphorylase and 9, nuclease. So my loving children, for DNA replication, the first part of DNA replication, what are the enzymes involved in DNA replication, what are their basic role, and how does this phenomena is going on. I will see you an 3-dimensional animation of DNA replication also. Before seeing that animation, you should know the basic concept of these enzymes and what are their role in DNA replication. So, what is the name of first enzyme? Any one of you? Already I have told. Okay, right. Helicase. Helicase enzyme, it helps in opening of the double helical structure of the DNA. Just you see, let it is double helical structure. This one, opening या unwinding. The major role, ये open, this one, opening कर रहे हैं ये this one, this enzyme helicase helps in opening of the double strand or unwinding of the strand. This is the major function of helicase. Topoisomerase. Just you see, topoisomerase, when helicase has opened the double strand, the topoisomerase, it remove the tension of the, just you see, here I am opening, again it wants to rewind. So it used to release the tension and pressure. It again want to rewind, recoil. तो ये क्या करता है? जो topoisomerase enzyme, it helps to release the tension of these two strands simultaneously. ये जो रोलिंग है, रोलिंग को, ये रोलिंग के टेंशन को ये रिमूव करता है, रिलीज करता है, so that it may not rewind. Single strand stabilizing protein, ये टोपोआइसोमरेज प्रयास तो करता रहता है. It is trying to remove, to release the tension of these two. Why tension is there? Because if you will see, recall the structure of real double helical, already you know. Just you are observing, children, here nitrogen bases are there, hydrogen bond are there.
तो ये इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, एडेनिन और थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, वो टाइटली अटैच रहते हैं। तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए टोपोआइसोमरेज रिलीज तो करता है प्रेशर को, रिलीज द प्रेशर, बट सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन दैट गिव्स स्टेबिलिटी, दैट गिव्स स्टेबिलिटी। नाउ द लाइगेज एंजाइम, जो सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है, दे यूज टू कट ज्वाइंट, और ये लाइगेज एंजाइम का मेन फंक्शन है। ये जो टोपोआइसोमरेज, ये इसको रोलिंग को कट किया था, सील किया था, ये लाइगेज, इट इज ज्वाइन, लाइगेज एंजाइम का काम है जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हुए थे उसको ये ज्वाइन करता है। दिस इज लाइगेज, द मेजर फंक्शन ऑफ लाइगेज, दैट इज ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ये देख रहे हैं जो यहां पे टोपोआइसोमरेज टेंशन को रिलीज किया था, सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, इसको स्टेबिलिटी पर डाल किया था, तो इसमें ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को इन्होंने कट कर देने से जो इसकी क्वाइलिंग का जो बॉन्ड है वो काफी प्रेशर इसका कम हो जाएगा। लेकिन कट करने के बाद उसको जोड़ना भी तो चाहिए। जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, ये प्रोसेस लगातार चल रही है, एक ही समय में चल रही है। लेकिन हम स्टेप वाइज, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, फॉर आवर नोइंग हाउ रेप्लिकेशन इज गोइंग ऑन, इसमें कोई इफ बट नहीं। दिस प्रोसेस, होल प्रोसेस, व्हाट आई एम इंटरेक्टिंग अमंग ऑल ऑफ यू, दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, ये ध्यान रखिएगा। तो लाइगेज का क्या काम है? टू ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड फिल इन द गैप। अब आप बोलेंगे सर प्राइमर क्या है? प्राइमर आर स्मॉल पीस ऑफ आरएनए। एक्चुअली माय लविंग चिल्ड्रन, इसमें जब न्यूली सेंसाइज, अभी हम लोग लेटर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट, तो यहां पे प्राइमर लगते हैं। आप ऐसे समझिए जैसे हम कोई न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको कोटिंग करने के लिए पहले प्राइमर लगाते हैं, तो प्राइमर बाद में रिमूव हो जाता है। लेकिन प्राइमर करता क्या है, दूसरी जो उस पर कोटिंग होगी, जो लेयर होगी, न्यूली सेंसाइज होगा, उसको वो एडहेसिव करता है। तो सेम वर्क, दैट इज प्राइमर्स। इसको ये भी कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो प्राइमेज एंजाइम, दिस प्राइमेज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज helps in removal of primers and fill in the primer and remove the gap। और ये तो सिंपल, अभी ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट्स था, ये जो स्ट्रैंड था, इसको अब यहां से जो 7th एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, इट हैज 3 सब यूनिट। इट स्टार्ट the major role in DNA replication. It consists of subunit alpha polymerase, epsilon and beta 2। जो अल्फा पॉलीमरेज 3rd का सब यूनिट है, वो कैटालिसिस का काम करता है। ऑलरेडी यू नो दैट कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट, दीज आर द कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शन। देयर प्रेजेंस में एक्टिवेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये कैटालिसिस का काम करेगा। ये किस समय? यहां पे डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग हो गए हैं, न्यूली सिंथेसाइज। तो यहां दूसरा जो एप्सिलॉन सब यूनिट होता है,
ये प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब जो टेम्पलेट स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट मतलब पेरेंटल, इसका रीडिंग करता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड। जैसे ये टेम्पलेट है, इसमें से ये न्यूली सिंथेसाइज धीरे धीरे बन रहा है, तो ये एप्सिलॉन सब यूनिट इसकी प्रूफ रीडिंग करता है, कोई मिस्टेक ना हो। कोई मिस्टेक हो जाती है इसको रिमूव भी करता है। और B2 ये स्लाइडिंग का काम करता है। तो बेटे ये जो 7th नंबर का एंजाइम है, इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर से जान लीजिए, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट, अल्फा, एप्सिलॉन एंड बीटा 2। ए जो अल्फा है वो कैटालिसिस का काम करता है। ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड फ्रॉम टेम्पलेट को प्रोसेस को ये एक्टिवेट करता है, ये कैटेलाइज करता है। एप्सिलॉन प्रूफ रीडिंग करेगा और प्रूफ रीडिंग करके एक्टिवेट करता है और न्यूक्लियोटाइड्स को ये एक्टिवेट। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो डीएनए है वो दैट इज द पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। उसमें दैट पेंटोज शुगर और 5 कार्बन एटम पे दैट फास्फोरस, 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे रहते हैं। तो ये उसी को एक्टिवेट करता है। ये एक्टिवेट का मतलब एक न्यूक्लियोटाइड्स को दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स से बाइंडिंग में ये एप्सिलॉन, और ये स्लाइड होकर के 1 से 2, 2 से 3, 4 ये हेल्प करते रहते हैं। ये देखिए फास्फोराइलेज, फास्फोराइलेज का जो काम है वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फास्फो का नाम आया तो डेफिनेटली ये जो बैकबोन होती है डीएनए की, वो शुगर और फास्फेट से बनी होती है। तो जो फास्फोराइलेज है बेटा, वो एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एंड एक्टिवेट द न्यूक्लियोटाइड। जैसे उसमें मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, लाइक दैट। तो इसका मेजर रोल है। व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ फास्फोराइलेज? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट क्यों जरूरी है? फॉस्फेट इसलिए जरूरी है कि फॉस्फेट और सुगर, दीज आर द बैकबोन। तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट एंड एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो दिस इज द, यहां पे मैं आपको लिख भी दे रहा हूं। चलिए, इसका जो मेजर रोल है एडिशन, सॉरी ये ड्राई हो गया बेटा। ड्राई इसलिए हो गया कि ये ओपन था, वोल्टाइल है, क्विकली वेपराइज हो गया। तो स्टूडेंट सी हियर, ये जो फास्फोराइलेज है इसका जो मेजर फंक्शन है यहां पे इसलिए मैं नोट कर दे रहा हूं क्योंकि ये एडिशन, ADDITION, एडिशन ऑफ फॉस्फेट एंड एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दैट इज द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहां पे फास्फो का वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट एडिशन ऑफ फॉस्फेट एंड एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप जानते ही हैं। ये पेन phosphate, here हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये लगे रहते हैं। ये पेंटोज शुगर है। तो ये जो फास्फोराइलेज है, ये एडिशन ऑफ फॉस्फेट एंड एक्टिवेशन, इसको एक्टिव करता है। यहां पे आप जानते हैं कि इसमें जो दूसरा जुड़ेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ऑलरेडी आप बता चुके हैं। यहां पे ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से दूसरा नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा
वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो ये फॉस्फोराइलेज का वही काम है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एंड activation of nucleotides to join to form a long chain for newly synthesized for the formation of newly synthesized strand. न्यूक्लियस ये सब काम हो गया, तो न्यूक्लियस एंजाइम अगेन ये प्रूफ रीडिंग करता है। देखिए प्रूफ रीडिंग का मतलब जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग पेपर बनाते हैं, प्रेस में देते हैं, तो प्रेस वाला उसकी कॉपी तो करता है, बट सम टाइम उसमें मिस्टेक कर देता है, तो उसको हम फिर से रीडिंग करते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। इन द सेम वे ये डीएनए रेप्लिकेशन में जो डिफरेंट एंजाइम, हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज, सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग, इसको एसबीएस प्रोटीन भी कहते हैं, लाइगेज चिपको आंदोलन में ये एडेसिव चिपकाने के काम में करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमरेज या डीएनए डिपेंडेंट ऑन दैट पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 3, ये जो सबके इंडिविजुअली फंक्शन हैं, इन्होंने दे हैव परफॉर्म देयर फंक्शन करेक्ट, 100% एक्यूरेसी इज देयर और नॉट, again proof reading nuclease enzyme. So in examination it may be asked, name the enzyme which help in proof reading of newly synthesized strands of DNA. तो यहाँ पे देखिए दो हैं, एक है एप्सिलॉन सब यूनिट ऑफ पॉलीमरेज 3 एंड न्यूक्लियस, दे हेल्प इन प्रूफ रीडिंग। अब हम आप लोगों को एक एनिमेशन दिखा देते हैं, और हाँ, मैं ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर सर का ऑन बिहाफ ऑफ आवर चिल्ड्रेन एंड माई सेल्फ आई वेलकम यू सर बाय कोर ऑफ द माई हार्ट। यू आर ग्रेट एजुकेशनिस्ट, ग्रेट बायोलॉजिस्ट। आई एम नथिंग बिफोर यू, योर सजेशन, योर इंस्ट्रक्शन, that is 100% implemented by me, sir. Thank you, sir. Thank you very much.